So, very good morning, students. Today is 16/5/2020, and we will discuss about the hydraulic machines, right? And we will discuss about the efficiencies of a turbine in my today's class. In my previous class, we have already discussed about the classifications of hydraulic machines, and I've already discussed about the layout of hydroelectric power plant. They are discussed about the net head, gross head, and the head loss. Everything we have already decided. In this today's class, we will discuss about the efficiency of the turbine and selection of the turbine in regarding some parameters. Okay, so at first we will start from the efficiency of the turbine. Efficiency of any turbine. Because we know from the classification of hydraulic machines that turbine is classified into various type, like application example of turbine is Pelton turbine, Francis turbine, Kaplan turbine, all about that. And this Pelton turbine, Kaplan turbine, and Francis turbine is used with respect to some parameters, okay, like specific head, like specific distance, like large discharge, low discharge. This type of thing, we have to use this parameter to classify the hydraulic machines. Now we will start the efficiency of any turbine. So efficiency of any turbine को हम लोग चार टाइप का efficiency हम लोग को मिलता है. First one is hydraulic efficiency. First one is hydraulic efficiency. Second one is mechanical efficiency. Mechanical efficiency. Third one is volumetric efficiency. Volumetric efficiency. And fourth one is overall efficiency. So चार टाइप का एफिशिएंसी हम लोगों को दिखाई देता है. फर्स्ट वन हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, सेकंड वन मैकेनिकल एफिशिएंसी, थर्ड वन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, एंड फोर्थ वन इज overall efficiency. So at first I will discuss about the hydraulic efficiency. What is the meaning of hydraulic efficiency? मैं इसको H ही करके लिख रहा हूँ. या तो जो efficiency का जो symbol होता है, that is called eta. Eta is called the symbol of the efficiency. So eta H means eta hydraulic efficiency. मतलब hydraulic efficiency को हम लोग इस symbol से define कर सकते हैं. So hydraulic symbol का जो definition क्या बोल रहा है? It is defined as the ratio of a power given by the water to runner of a turbine. Runner is the rotating part of a turbine, means this is the blades of a turbine, right? तो रोटर या रोटर का जो रनर पार्ट है, टरबाइन का जो रनर पार्ट है, रनर पार्ट मतलब जो रोटेट करता है, जो घूमता है, जो मूव करता है, जो रन करता है. तो यहाँ पे इस टरबाइन का रनर पार्ट क्या है? यहाँ पे इस टरबाइन का रनर पार्ट है ब्लेड. ओके, तो यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया गया है कि it is defined as the ratio of a power given by water to the runner of a turbine to the power supplied by the water at the inlet of the turbine. Okay, again I am repeating this. It is defined as the ratio of power given by water to the runner of a turbine, okay, and turbine to the power supplied by the water at the inlet of the turbine. इसका मतलब देखो, ये अगर मेरा एक ब्लेड है, राइट, यहाँ पे ये नोजल है, राइट, ये मान लो ये मेरा नोजल यहाँ पे है, यहाँ पे ये टरबाइन का ब्लेड को मैंने ड्रॉ किया हूँ. तो इनलेट ऑफ द ब्लेड मतलब इनलेट ऑफ द टरबाइन. टरबाइन का इनलेट मतलब ब्लेड फ्लूइड, नोजल से जब जेट निकल के जब स्ट्राइक करेगा ब्लेड के अंदर, नोजल से जब जेट निकाल के ब्लेड के अंदर स्ट्राइक करेगा, सो जब यहाँ पे स्ट्राइक किया है, राइट, तो स्ट्राइक जब कर रहा है तब इस ब्लेड के ऊपर इनलेट में, ब्लेड का इनलेट में कितना पावर दे रहा है? ओके, कितना पावर दे रहा है? पावर, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो is give power given by, मतलब eta hydraulic efficiency is equal to power delivered to runner divided by power supplied at inlet. Power supply
at inlet. Okay, so what is the meaning of runner? At first we have to think what is the meaning of the runner. Runner is a rotating part of a turbine. देखो ये मेरा ब्लेड है, ये इसके साथ मेरा क्या अटैच्ड हुआ है, मेरा शाफ्ट अटैच्ड हुआ है, और शाफ्ट को रोटेट करने के लिए मेरा बीच में क्या अटैच्ड हुआ है, रोटर अटैच्ड हुआ है। क्योंकि अगर ब्लेड रोटेट करेगा तो मेरा रोटर रोटेट करेगा, तो दैट इज रनर, राइट। रोटर रोटेट करेगा तो मेरा शाफ्ट रोटेट करेगा। तो runner is a rotating part of a turbine and on the runner vanes are fixed to the runner vanes are fixed, मतलब यहाँ ये टर्बाइन अगर घूमेगा, यहाँ पे जो ब्लेड अगर रोटेट करेगा तो ये रनर रोटेट करेगा, राइट। बट ये जो रनर है इसके अंदर जो ब्लेड है ये मेरा फिक्स्ड है। ये हम लोग कहाँ पे देखेंगे, हम लोग इसको फ्रांसिस टर्बाइन स्टडी करने के टाइम पे देखेंगे। फ्रांसिस टर्बाइन में स्टडी करने के टाइम पे ये बोला जाता है कि वहां पे दो टाइप का ब्लेड यूज किया जाता है, एक फिक्स्ड ब्लेड, एक मूविंग ब्लेड। मतलब एक ब्लेड मेरा फिक्स रहेगा जो मेरा गाइडिंग करेगा फ्लूइड को, लिक्विड को गाइड करेगा मूविंग ब्लेड तक, और जो मूविंग ब्लेड है वो ड्यू टू द गाइडिंग ऑफ द ब्लेड, मतलब ये जो फिक्स ब्लेड वो मेरा गाइड करेगा वाटर को कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो ये गाइड ब्लेड है, फिक्स ब्लेड है, स्टेशनरी ब्लेड है, और ये जो ब्लेड है ये मेरा मूविंग ब्लेड है। ये हम लोग फ्रांसिस टर्बाइन में बहुत अच्छी तरीके से जान पाएंगे। तो जब तक नहीं जान पा रहे तब तक हम लोग इतना चीज जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रनर। रनर इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द टर्बाइन एंड वेयर द रनर वेन्स आर फिक्स्ड। Runner is the rotating, this circle is called runner. Runner is a rotating part of the turbine and the runner vanes are fixed. So power delivered to the runner divided by power supply at the inlet. तो अगर मैं सिर्फ ये वाला चीज को अगर मैं देखूंगा, जब नोजल से जेट निकाल के जेट निकलने के बाद, जेट डिस्चार्ज होने के बाद ब्लेड पे जो मेरा पावर दे रहा है दैट इज कॉल्ड पावर सप्लाई एट इनलेट। एंड ये ब्लेड में पावर इनलेट इनपुट होने के बाद ये ब्लेड के द्वारा ये मोटर, ये रोटर में जितना पावर गेन हो रहा है या जितना पावर मिल रहा है इस रोटर को रोटेट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड पावर डिलीवर्ड टू रनर, राइट। सो ईटा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर डिलीवर्ड टू रनर डिवाइडेड बाय पावर सप्लाई एट द इनलेट। ओके, तो हम लोग इसको कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कभी-कभी इस तरीके से बोल दिया जाता है, रनर पावर divided by water power WP, RP by WP. Eta hydraulic efficiency is equal to power delivered to runner divided by power supply at inlet is equal to runner power divided by water power. Okay, तो तुम सोचो, हम लोग हमेशा एक चीज जानते हैं कि कोई भी मशीन आइडियल मशीन नहीं होता है। कोई भी मशीन को आइडियल मशीन होने के लिए जितना मैं इनपुट दूंगा उतना ही मुझे आउटपुट मिलना चाहिए, राइट। तो इसको हम लोग आइडियल मशीन कहेंगे, मतलब 100% एफिशिएंसी मिलेगा। बट 100% एफिशिएंसी मतलब आउटपुट और इनपुट को इक्वल होना चाहिए। बट ये ऑब्वियस, जो प्रैक्टिकल रियल फील्ड में हम लोग कोई भी जो मशीन यूज करते हैं वो मशीन में क्या होता है, जो भी आउटपुट देते हैं उससे थोड़ा सा कम हम लोग को, जो भी इनपुट देते हैं उससे थोड़ा सा कम हम लोग को आउटपुट मिलता है। मतलब एफिशिएंसी ऑब्वियसली लेस देन 100% होता है। तो यहाँ पे जितना मुझे पावर इनपुट मैं दूंगा ऑब्वियसली उतना पावर मेरा यहाँ पे आउटपुट नहीं होगा। मतलब यहाँ पे अगर ये ज्यादा होगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो पावर दे रहा हूं इससे थोड़ा सा कम पावर इसको मिलेगा। तो ये मेरा आउटपुट है, ये मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है। सो मैं आउटपुट डिवाइडेड बाय मैं इनपुट कर रहा हूं, output divided by input, power delivered to runner divided by power supply at inlet. So this is the efficiency, eta hydraulic efficiency. Okay, so now we have to define what is the meaning of the runner power. रनर पावर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? रनर पावर का जो फॉर्मूला है, हम लोग ब्लेड्स का जो पिछला चैप्टर में इंपैक्ट ऑफ जेट पढ़ने के टाइम पे कर्व ब्लेड के टाइम पे, मतलब जहां पे मेरा कर्व ब्लेड अनसिमेट्रिकल था और मेरा मूविंग था और जो जेट मेरा स्ट्राइक कर रहा है वो मेरा कर्व ब्लेड का एक एंड पे स्ट्राइक कर रहा था। तो उस टाइम हम लोग देखे थे पावर का फॉर्मूला हम लोग डिफाइन, वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग डिफाइन करते थे विद द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके। सो नाउ व्हाट इज द पावर? द रनर पावर इज इक्वल टू स्मॉल w by g into vw1 plus minus vw2 into u। मैंने बोला था वर्क डन मतलब क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू वेलोसिटी।
F into V, right? So F into V, force into velocity. So this is the initial velocity U, W by G into VW1 plus minus VW2 into U डिवाइडेड बाय, अगर 1000 करता हो तो इसको हम लोग किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला मेरा वाट में दिया गया था, अगर उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी आवर किलोवाट. सो रनर पावर का फॉर्मूला मेरा ये हुआ, राइट? सो रनर पावर का मेरा फॉर्मूला ये हुआ. अब VW1 प्लस माइनस VW2 into UKW, ये मेरा पेल्टन टरबाइन के लिए होता है, ये मेरा पेल्टन टरबाइन के लिए होता है. मैं ये सारा चीज जब पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, कपलन टरबाइन में स्टडी करूंगा, उस टाइम हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, राइट? सो पेल्टन टरबाइन के लिए मेरा ये फॉर्मूला होता है, और रेडियल फ्लो टरबाइन जो मेरा फ्रांसिस टरबाइन के लिए मेरा क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज W by G. वहां पे क्या होता है, जो U, ये जो मेरा U मेरा इनिशियल वेलोसिटी, एक ही इनिशियल वेलोसिटी था, राइट? तो रेडियल टरबाइन के टाइम पे वो क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है. VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2 into डिवाइडेड बाय 1000 किलोवाट, राइट? डिवाइडेड बाय 1000 किलोवाट. ये मेरा रेडियल फ्लो टरबाइन के लिए यूज होता है, रेडियल फ्लो टरबाइन, रेडियल फ्लो टरबाइन. तो ये मेरा रनर पावर का फॉर्मूला है. रनर पावर, ये पार्ट को मैं आपसे समझ गया हूं, क्योंकि ये पार्ट मेरा इंपैक्ट ऑफ जेट का जो लास्ट डेरिवेशन था उसमें हम लोग निकाले थे ये वाला इक्वेशन, ये भी उसी तरीके से निकाला गया है. बट रेडियल फ्लो टरबाइन के लिए क्या होता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है ब्लेड का, जो इनिशियल वेलोसिटी वो 2 होता है, क्योंकि वहां पे एक ब्लेड मेरा स्टेशनरी रहता है, एक ब्लेड मेरा फिक्स रहता है. तो इसलिए दोनों ब्लेड्स का अलग अलग होता है कंपैरिजन टू, जिसका एक जो स्टेशनरी होता है उसका एक अलग वो एक अलग वेलोसिटी से मूव करता है, और जो क्या बोलते हैं, जो मूविंग प्लेट है वो एक अलग वेलोसिटी से मूव करता है. इसीलिए वहां पे हम लोग दो वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं, U1 और एक U2. So this is the formula of runner power. Now what is the formula of water power? Water power का जो formula है WP is equal to rho into G into Q into H. Water power rho into G into Q into H divided by 1000 kilowatt. Divided by 1000 kilowatt. Rho into G into Q into H, right? This divided by 1000 kilowatt. This is the formula of water power. So eta hydraulic efficiency निकालने के लिए हम लोग वाटर पावर, रनर पावर से अगर वाटर पावर को अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम लोगों को ये ईटा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मिलता है. ओके, सो next we will define mechanical efficiency. Mechanical efficiency is equal to what? Mechanical efficiency is defined as the power delivered by water to the runner. Power delivered by water to the runner. देखो सिस्टम को थोड़ा सा समझना, राइट? ये मेरा रनर है, ये मेरा एक ब्लेड है, राइट? ईटा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी के टाइम क्या हुआ, मेरा जो सारा प्रोसीड्यूर मेरा स्टार्ट हो रहा है कि जब नोजल से मेरा जेट जाके ब्लेड पे स्ट्राइक कर रहा है, जब भी स्ट्राइक किया उसके बाद टरबाइन का काम शुरू हुआ. तो मेरा सारा प्रोसीड्यूर जो मेरा शुरू हो रहा है वो यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद से. तो यहाँ पे जब वाटर जाके ब्लेड पे स्ट्राइक किया, ये मेरा इनपुट हुआ और ये रोटर में एक पावर गेन हुआ, दैट इज माय आउटपुट, राइट? सो आउटपुट बाय इनपुट से मैं ईटा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी में निकाल लिया. अब मैं क्या देख रहा हूं, ईटा मैकेनिकल एफिशिएंसी. मैकेनिकल एफिशिएंसी में क्या बोला जा रहा है, द पावर डिलीवर्ड बाय वाटर टू द रनर ऑफ अ टरबाइन. ये जो आउटपुट पावर मिल रहा है, ये आउटपुट पावर कहां से मिला, ये आउटपुट पावर मिला इंपैक्ट ऑफ जेट से. जेट जब जाके ब्लेड पे स्ट्राइक किया, फोर्स एक्सर्ट हुआ, वहां से मुझे ये रनर में आउटपुट पावर मिल रहा है. सो द पावर इज डिलीवर्ड बाय वाटर टू द रनर, ओके, ऑफ अ टरबाइन इज ट्रांसमिटेड टू द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन. तो यहाँ पे जो पावर मिलेगा तो फिर ये रोटर रोटेट करना शुरू करेगा. जब रोटर रोटेट करना शुरू करेगा तब इसके साथ जो शाफ्ट है, देखो यहाँ पे शाफ्ट है, ये शाफ्ट भी ऑब्वियसली रोटेट करना शुरू करेगा. तो द पावर इज ट्रांसमिटेड टू द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन. ड्यू टू मैकेनिकल लॉसेस द पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन इज लेस देन द पावर डिलीवर्ड टू द टरबाइन. इसका मतलब अब
ये वाला पार्ट मेरा हो गया, ये इनपुट से मुझे ये आउटपुट पावर मिल गया। अब मैं ये वाला पार्ट को इग्नोर करता हूं, राइट, मैकेनिकल एफिशिएंसी के लिए। मैकेनिकल एफिशिएंसी में क्या बोल रहा है कि ये रनर में जो पावर है उस पावर को मैं अगर इनपुट पावर समझता हूं जो मुझे वाटर के द्वारा मिल रहा है, और ये अगर इस रनर के वजह से शाफ्ट में मुझे जो पावर मिल रहा है उसको अगर मैं आउटपुट पावर अगर मानता हूं, तो ऑब्वियसली रनर का इनपुट पावर और शाफ्ट का आउटपुट पावर में ऑब्वियसली एक डिफरेंस होगा ड्यू टू सम मैकेनिकल लॉसेस, ड्यू टू बिकॉज़ बियरिंग लगा हुआ है, कपलिंग किया हुआ है, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन भी होता है, तो ऑब्वियसली इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर तो मेरा सेम नहीं होगा। तो रनर में जो पावर है वो जो पावर मुझे वाटर से मिल रहा है उसको अगर मैं इनपुट पावर मानता हूं, तो वो पावर किस में ट्रांसमिट हो रहा है, शाफ्ट में ट्रांसमिट हो रहा है। तो शाफ्ट का जो पावर है वो मैं आउटपुट पावर मानता हूं, तो फिर मेरा ये आउटपुट बाय इनपुट मतलब शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय रनर पावर इज इक्वल टू मेरा होता है मैकेनिकल एफिशिएंसी। सो ईटा मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर at the shaft of the turbine, power at the shaft of turbine, power at the shaft of turbine divided by power delivered by water to the runner, power delivered by water to runner, power delivered by water to runner। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, इसको मैं लिख सकता हूँ शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय रनर पावर। सो शाफ्ट पावर इज आउटपुट हियर एंड रनर पावर इज इनपुट हियर। तो तुम लोग थोड़ा ध्यान देना कि पावर कैसे ट्रांसमिट होता है, पहले ब्लेड में ट्रांसमिट हुआ, फिर रोटर में ट्रांसमिट हुआ, फिर शाफ्ट में ट्रांसमिट हुआ। जब ब्लेड में ट्रांसमिट हुआ तब आउटपुट बाय इनपुट, रनर पावर डिवाइडेड बाय क्या बोलते हैं वाटर पावर। जब मेरा ब्लेड से रनर से लेकर मेरा शाफ्ट में ट्रांसमिट हुआ तब शाफ्ट पावर इज कॉल्ड इनपुट एंड तब रनर पावर इज कॉल्ड इनपुट एंड शाफ्ट पावर इज कॉल्ड आउटपुट। तो शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय रनर पावर is called input, shaft power is called output. So output by input, so shaft power divided by runner power. So this is called mechanical efficiency. Now we will discuss about the volumetric efficiency. Now we will discuss about the volumetric efficiency. Volumetric efficiency क्या बोला जा रहा है कि the volume of water striking the runner of a turbine is slightly less than the volume of water supplied to the turbine. क्या बोला जा रहा है again, the volume of water striking the runner, the volume of water striking the runner of a turbine मतलब ब्लेड में जितना वाटर मेरा स्ट्राइक कर रहा है, ये तो मेरा ब्लेड मेरा एक्चुअली रनर के साथ अटैच्ड है ना, ब्लेड घूम रहा है तभी ना मेरा रनर घूम रहा है। ब्लेड इज अ इंग्रेडिएंट पार्ट, आई मीन ब्लेड इज अ असेंबल्ड पार्ट ऑफ द रनर। ब्लेड के साथ मेरा रनर असेंबल किया गया है, राइट। तो ब्लेड में अगर स्ट्राइक कर रहा है तो वो मेरे रनर में ही एक्चुअली स्ट्राइक कर रहा है, क्योंकि अगर ब्लेड में स्ट्राइक कर रहा है तभी जाके मेरा रनर रोटेट कर रहा है, ब्लेड में स्ट्राइक कर रहा है तभी जाके ये सर्कुलर जो रनर है वो मेरा रोटेट कर रहा है। तो क्या बोला जा रहा है कि जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर मेरा रनर में स्ट्राइक कर रहा है और जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर मेरा टरबाइन के लिए सप्लाई हो रहा है, नोजल से जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल रहा है टरबाइन के लिए सप्लाई होने के लिए, उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर का रनर में जाकर स्ट्राइक कर रहा है, नहीं स्ट्राइक कर रहा है, क्योंकि एक सर्टेन डिस्टेंस में वो एक सर्टेन डिस्टेंस में वो रहता है। ये अगर मेरा ब्लेड है, ये अगर मेरा ब्लेड है, ये अगर मेरा नोजल है, तो यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस की वजह से सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर मींस वो कभी कहीं गिर जा रहा है, कभी एग्जॉटेड हो जा रहा है, कभी निकल जा रहा है, कभी स्ट्राइक नहीं कर रहा है। तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर, कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर जो मेरा एक्चुअली स्ट्राइक नहीं करता है, राइट। सो इसके लिए कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज, आई मीन जो नोजल से डिस्चार्ज होने के बाद वो स्ट्राइक नहीं करता है, वो क्या होता है, वो टेल रेस में आके स्टोर हो जाता है। ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर ब्लेड में स्ट्राइक करने के बाद टेल रेस में स्टोर होता है, बट कुछ अमाउंट ऑफ वाटर, कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर जो ब्लेड में स्ट्राइक नहीं कर पाता उसके पहले ही मेरा टेल रेस में स्टोर होता है, टेल रेस में जाके जमा होता है। तो इसीलिए ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ईटा वीई इज इक्वल टू बोला जाता है वॉल्यूम ऑफ वाटर striking the runner, volume of water striking the runner मतलब कितना अमाउंट ऑफ वाटर जाके ये रनर में स्ट्राइक कर रहा है, एक्चुअली मतलब ब्लेड में स्ट्राइक कर रहा है,
volume of water striking the runner divided by volume of water supplied, volume of water supplied, volume of water supplied to the turbine, volume of water supplied to the turbine. ठीक है, मतलब नोजल से कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर मेरा टरबाइन को स्ट्राइक करने के लिए निकला था, दैट इज माय इनपुट पावर, एंड कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर मेरा रनर को स्ट्राइक कर रहा है, दैट इज माय आउटपुट पावर. सो आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इज इक्वल टू eta वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. सो नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द ओवरऑल एफिशिएंसी. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द ओवरऑल एफिशिएंसी. ओके, सो ओवरऑल एफिशिएंसी को हम लोग कैसे लिख रहे हैं? ईटा ओवरऑल एफिशिएंसी, ईटा ओई, ईटा ओवरऑल एफिशिएंसी. सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर अवेलेबल एट द shaft of the turbine and the power supplied by the water at the inlet of the turbine. देखो, मैं ध्यान देना, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मतलब आउटपुट बाय इनपुट, रनर पावर डिवाइडेड बाय इनलेट वाटर पावर. उसके बाद मैकेनिकल एफिशिएंसी, रनर पावर जो मेरा इनपुट है और ये शाफ्ट पावर, मतलब शाफ्ट पावर मेरा आउटपुट है, रनर पावर मेरा इनपुट है. वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है? रनर में मेरा कितना वाटर स्ट्राइक कर रहा है, दैट इज माय आउटपुट, एंड मेरा जेट से मेरा कितना अमाउंट ऑफ, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर मेरा ब्लेड में स्ट्राइक करने के लिए निकल रहा है, दैट इज माय इनपुट, दैट इज माय वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. नाउ व्हाट इज द ओवरऑल एफिशिएंसी? कितना अमाउंट ऑफ वाटर मेरा रनर पे स्ट्राइक करेगा, मतलब ब्लेड पे स्ट्राइक करेगा, इसके साथ रिलेशन है किसका? शाफ्ट में मेरा कितना पावर मिल रहा है. सो इसीलिए बोला जा रहा है, और एक बात ध्यान देना, जेट से मेरा कितना अमाउंट ऑफ वाटर मेरा यहाँ पे स्ट्राइक करने के लिए निकल रहा है, या वाटर का कितना वाटर पावर मेरा यहाँ पे स्ट्राइक करने के लिए निकल रहा है, कितना वाटर पावर मेरा ये ब्लेड में जा रहा है, दैट इज, इसके वजह से शाफ्ट में मेरा कितना पावर आ रहा है. कहां से आ रहा है? ब्लेड थ्रू रनर थ्रू शाफ्ट. तो मेरा यहाँ इसके साथ मेरा शाफ्ट का पावर का रिलेशन यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, तभी जाके मेरा ओवरऑल एफिशिएंसी निकलेगा. पूरा होल एफिशिएंसी में अगर मैं ये मेरा अगर इनपुट पावर है, जो मेरा वाटर पावर अगर मेरा इनपुट पावर है, और ये शाफ्ट पावर मेरा अगर मेरा अल्टीमेट आउटपुट पावर है, तो मैं ईटा ओवरऑल एफिशिएंसी इक्वल टू लिख सकता हूं शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय वाटर पावर, शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय वाटर पावर. अब मैं इसको क्या कर सकता हूं? मैं लिख सकता हूं शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय वाटर पावर इनटू रनर पावर डिवाइडेड बाय रनर पावर. राइट, ये रनर पावर को हम लोग इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि शाफ्ट वाटर पावर को शाफ्ट पावर में जाने के लिए, या वाटर का जो पावर वो शाफ्ट का पावर में ट्रांसमिट होने के लिए बीच में रनर को रोटेट करना पड़ता है, बीच में रनर को पावर देना पड़ता है. तो मैंने क्या किया? शाफ्ट पावर बाय वाटर पावर इनटू रनर पावर बाय रनर पावर, इसको अगर काट देंगे तो 1 तो सेम वैल्यू अगर आ जाएगा. तो राइट, तो मैंने क्या किया? मैंने किया शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय रनर पावर, मैं लिख सकता हूं दिस बाय दिस इनटू रनर पावर डिवाइडेड बाय वाटर पावर, दिस बाय दिस, ये मैं लिख सकता हूं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शाफ्ट पावर बाय रनर पावर? इसका मतलब है ये मेरा बन गया मैकेनिकल एफिशिएंसी ईटा एमी इनटू रनर पावर बाय वाटर पावर. तो ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा बन गया हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ईटा एजी. So eta overall efficiency is equal to eta me into eta hydraulic efficiency. ये मेरा एक फॉर्मूला है. व्हाट इज द इक्वेशन बिटवीन द eta overall efficiency के साथ मेरा मैकेनिकल एफिशिएंसी और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का क्या एक रिलेशन है, वो मैं इस तरीके से बना सकता हूँ. और आइदर और मैं शाफ्ट पावर को मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ? P, जो मेरा न्यूमेरिकल में बोल दिया जाता है कि शाफ्ट का पावर का वैल्यू 300 किलोवाट, तो मैं डायरेक्ट P का वैल्यू पुट कर सकता हूँ. और वाटर पावर को मैं कैसे निकाल सकता हूँ? रो इंटू जी इंटू क्यू इंटू एच डिवाइडेड बाय 1000 किलोवाट. 1000 में इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे किलोवाट में करना है. पावर हमेशा किलोवाट में हम लोग मशीन बिग ह्यूज एंड हेवी मशीनरीज का जो पावर है उसका यूनिट हम लोग हमेशा किलोवाट में डिस्टिंग्विश करते हैं, और जो स्मॉल मशीन है या लाइट मशीन है उसका पावर को हम लोग हमेशा वाट से डिस्टिंग्विश करते हैं. So this is the relation between eta overall efficiency is equal to eta mechanical efficiency into eta hydraulic efficiency. So now I will describe about the selection of the turbine. Okay. So
now we will discuss about the selection of turbine depends on water head and discharge. So what actually we have to think about the what are the natural sources of hydraulic energy. Hydraulic energy मतलब जो fluid जाके कोई blade पे strike करेगा, that is called the power. We have the turbine gets some power, the turbine gets some energy and the runner is rotating, right? But what are the actual natural sources of hydraulic energy? That are first one, large quantity of water. मैं small term में लिख रहा हूँ, large quantity of water, large quantity of water and at water available at high heads, available at high heads. Second, small quantity of water, small quantity of water available at high heads. Okay, दोनों हुआ. तीसरा नंबर है large quantity of water, large quantity of water available at low head. Fourth, small quantity of water available at high heads. Sorry, high heads, low heads. Sorry, low heads and low heads. हुआ हाई हेड्स एंड लो हेड्स. लो हेड्स हो गया. तो ये चार टाइप का सोर्सेस मुझे मिलता है. लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर मतलब दिस टर्म इज डिफाइंड एज द डिस्चार्ज एंड दिस टर्म इज डिफाइंड एज द हेड. वाटर हेड मतलब अगर मेरा ये पाइप का डायमीटर है, ओके, अगर मेरा ये पाइप का डायमीटर है तो पाइप के अंदर से अगर इस तरीके से लिक्विड फ्लो करेगा तो लिक्विड का हेड कितना है, लाइक दिस. अगर इतने से इतना हाइट में अगर लिक्विड फ्लो करेगा तो लिक्विड का हेड कितना है, ये. अगर होल अमाउंट लेके लिक्विड अगर फ्लो करेगा तो लिक्विड का हाइट कितना है, ये. तो ये हाई हेड है, लो हेड है, लार्ज क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी है. लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर डिफाइंड डिस्चार्ज एंड हाई हेड एंड लो हेड इज डिफाइंड एज अ हेड और वाटर हेड. सो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल एट हाई हेड. सब सारा चीज पाइप्स के बारे में बोला जा रहा है, जो जेट के बारे में वो सारा चीज के बारे में बोला जा रहा है. Small quantity of water available at high head, large quantity of water available at low head, and small quantity of water available at low head. So what are the example or application of this type of turbine? ये दोनों टर्बाइन का जो एग्जांपल है, दोनों टाइप्स का जो एग्जांपल जो हम लोग टर्बाइन में यूज करते हैं, दैट इज माय पेल्टन टर्बाइन. पेल्टन टर्बाइन में अगर हम लोग हाई हेड यूज करते हैं, लार्ज क्वांटिटी अवेलेबल एट हाई हेड, तो मेरा एफिशिएंसी ज्यादा होगा. अगर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल एट हाई हेड, वहां पे मेरा जो एफिशिएंसी है, पेल्टन टर्बाइन का जो एफिशिएंसी है वो मेरा घट जाएगा. सिंपल है. अब लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट मीडियम हेड भी होता है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर एट मीडियम हेड भी होता है, तो मैं उसको डिफाइन नहीं किया. उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्रांसिस टर्बाइन यूज करते हैं. और एक जो टर्म से मैं लिख ही दे रहा हूं उसको हम लोग ज्यादातर यूज नहीं करते. large quantity of water available at medium head, small quantity of water available at medium head. तो ये दोनों टाइप्स कौन से टर्बाइन में दिखाया था, दैट इज माय फ्रांसिस और रिएक्शन टर्बाइन. फ्रांसिस और रिएक्शन टर्बाइन. ओके. और लास्ट वन, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल एट लो हेड्स and small quantity of water available at low head. इसका जो मतलब इस टाइप का टाइप कौन सा टर्बाइन में दिखाया था, दैट इज माय कपलान और एक्सियल फ्लो टर्बाइन. कपलान और एक्सियल फ्लो टर्बाइन. कपलान और एक्सियल फ्लो टर्बाइन, राइट. सो ये चीज हम लोगों को डिफाइन करता है कि हम लोग कौन सा टर्बाइन को हम लोग यूज करेंगे, कौन सा टर्बाइन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे हम लोगों को मैक्सिमम एफिशिएंसी पाने के लिए, राइट. तो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं सिलेक्शन ऑफ टर्बाइन ऑन द बेस्ड ऑफ. मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, वो एग्जांपल थोड़ा सा ध्यान देना. उसके लिए थोड़ा सा ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूं मैं, फिर भी और थोड़ा सा डिफाइन स्पेसिफिक करके डिफाइन कर दे रहा हूं. First, selection of turbine depends on water head and discharge. First, minimum discharge. तो मैं क्या लिखूंगा, small discharge. Small discharge and high head. Small discharge and high head का एग्जाम्पल क्या है,
स्मॉल डिस्चार्ज एंड हाई हेड का एग्जांपल हम लोग देखे थे, दैट इज पेल्टन टरबाइन, राइट। उसके बाद मॉडरेट डिस्चार्ज, एमडी, मॉडरेट डिस्चार्ज एंड मॉडरेट हेड, एमएच, मॉडरेट डिस्चार्ज एंड मॉडरेट हेड, इसका एग्जांपल होगा फ्रांसिस। उसके बाद मैक्सिमम डिस्चार्ज, स्मॉल, मॉडरेट, मैक्सिमम, मैक्सिमम डिस्चार्ज एंड लोअर हेड, maximum discharge at lower head, that is Kaplan turbine, Kaplan turbine, right। उसके बाद maximum discharge at very lower head, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखा रहा हूं, maximum discharge and very lower head, VLH, very lower head, that is propeller turbine, propeller turbine, okay। Next, medium discharge and high head, medium discharge and high head, that is modern Francis turbine, modern Francis turbine, okay। So small discharge and high head के लिए हम लोग कौन सा टरबाइन यूज करेंगे, पेल्टन टरबाइन। मॉडरेट डिस्चार्ज एंड मॉडरेट हेड मतलब मीडियम डिस्चार्ज एंड मीडियम हेड के लिए फ्रांसिस टरबाइन। मैक्सिमम डिस्चार्ज एंड लो हेड के लिए यूज करेंगे कपलन टरबाइन। मैक्सिमम डिस्चार्ज एंड वेरी लो हेड के लिए यूज करेंगे प्रोपेलर टरबाइन। एंड मैक्सिमम डिस्चार्ज मॉडरेट डिस्चार्ज एंड हाई हेड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। तो ये सारा पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड करके हेड एंड डिस्चार्ज, ये सारा पैरामीटर्स हेड एंड डिस्चार्ज के ऊपर बेस्ड करके हम लोग कोई भी इंडस्ट्री में टरबाइन को सिलेक्ट करते हैं टू गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी और टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट। So now I am concluding my class. Thank you for attending my class and have a nice day. Stay home and save life. Thank you.